A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the reason-based questions of story part, in which I have taken the questions a few from the textbook, a few from the internet, जिसमें summaries और ये सब चीजें होती हैं, and a few from the pre-board questions that have been asked in many of the students and they forwarded it to me. Okay, तो इसमें the first story that I have taken is to build a fire. The first part is कि ये हमने कुछ कुछ चीजें ली हैं. I have not taken the whole of the story. आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी फ्रेम कर सकते हो. I would suggest कि उसके लिए इतना पढ़ो उस टेक्स्ट बुक को कि so that you are able to deal with the answers. The first is, in the story to build a fire, man has a crazy idea to kill the dog. क्यों? वो क्यों ये सोचता है? क्योंकि he had to find what could possibly make his body warm one way or another. उसको कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो उसकी बॉडी को वार्म करे, नहीं तो उसको मरना पड़ेगा. इसीलिए he just had a crazy idea to kill the dog. Next question is, इसी स्टोरी में ही the man feels the need to build a fire before having his lunch. उसने सोचा कि मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले आग जला लूं, बिकॉज हिज फिंगर्स एंड टोज आर गोइंग नम. वो बहुत ज्यादा ठंडे पड़ रहे थे. ही नोज कि इफ हिज हैंड्स become too cold he will be unable to start a fire, so hence he choose fire first and then he went for lunch. The dog looks back at the fire. क्यों? क्योंकि dog को ये पता था that it was too cold to travel in the snow. Means उसके अंदर एक already एक instinct थी कि ये कोई time नहीं है travel करने का. Next question, man held matchsticks between the heels of his hands. अपने hands की heels पे उसने क्यों उसको पकड़ा था? Why? Because he fails to catch hold of it at his fingers, as his fingers are numb. His hands have stopped working. उसके हाथ चल नहीं रहे थे, उसकी fingers बहुत numb थी, इसलिए उसने सोचा कि हम इसको अपने hand की heels से ही पकड़ लेते हैं. Then the man at the sight of the dog had a wild idea. उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि एक मतलब उसके दिमाग में एक स्टोरी आई थी जो उसने सोची थी, कहानी, the tale of the man who was caught in a blizzard because it was freezing. उसको उस बारे में सोचने मतलब उसको वो चीज याद आ रही थी कि वो पर्सन ऐसा था और उसके बाद उसने किसी एनिमल को मार करके उसी के कार केस में खुद चला गया था, या शायद हैंड्स कुछ डाल लिए थे so that he could be warm. ये कहानी उसको याद आ रही थी. तो ये उसको क्यों याद आ रहा था? Why? Because it was too cold. और उसने सोचा कि वो भी डॉग को मार दे, हैंड्स उसके अंदर बरी कर ले उसकी वार्म बॉडी में, so that जो उसकी बॉडी की नमनेस है वो चली जाए. Then he could build another fire. Okay, then next is B. Wordsworth. B. Wordsworth, the first question in this is that the world became most exciting place for the boy. Why? Because he enjoyed the company of the poet. जहाँ पर वो कहता है कि चलो हम कैफे चलते हैं और यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, तो उतने पूरे टाइम पीरियड में वो उसकी कंपनी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा था. ठीक है, और ये भी आप इसमें एड ऑन कर सकते हो कि वो लोग कहाँ कहाँ गए थे, where the narrator had a very excited mood with, or he was very much happy with the B. Wordsworth. और कई कई जगह पे हमने इसका नाम यहाँ पर पोएट भी यूज किया, कंफ्यूज मत हो जाना. द नरेटर से हिज इंग्लिश वाज सो गुड. एकदम स्टार्टिंग में वो कहता है कि जो मैन आया, बी वर्ड्सवर्थ आया, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि वो बिल्कुल इट डिडंट साउंड नेचुरल, कि वो नेचुरली समथिंग डिफरेंट लग रही थी. व्हाई? बिकॉज जिस पार्ट ऑफ स्पेन में जहां पर नरेटर ही यूज्ड टू लिव, पीपल यूज्ड टू स्पीक इनएक्यूरेट इंग्लिश विद द लोकल डायलेक्ट. ओके, उनकी जो इंग्लिश थी वो थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि वहां पे उनकी जो लोकल एसेंट था बोलने का वो बहुत ज्यादा था. वर्ड्सवर्थ इज स्पीकिंग करेक्ट एंड एक्यूरेट इंग्लिश. That is the reason he sounds unnatural to the narrator. Next question is कि B. Wordsworth ने बोला the poet can cry for everything. क्यों B. Wordsworth ने कहा कि poet can cry for everything? एकदम स्टार्टिंग में जब उसके घर आता है. Why? Because a poet can look into the depth of the things. वो समझ सकते हैं that in a way that one
कैन नेवर अंडरस्टैंड इट. पोएट का अलग ही लेवल का इमेजिनेशन, अलग ही लेवल की सेंसिटिविटी होती है, उनके अंदर एम्पैथी होती है, तो दे कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ थिंग्स, दे कैन अंडरस्टैंड इट वेल. इट डज नॉट जस्ट, इट इज नॉट जस्ट अ सैड क्राई. जरूरी नहीं कि वो एक सैड क्राई ही हो. इट कैन बी अ हैप्पी क्राई ऑल्सो, एंड इट कैन बी अ excited cry also. Okay, the next is narrator की mother. She was mad at the narrator जब वो घर वापस आया after have. Why? Because he returned home at 6 in the evening. स्कूल से वो शाम को 6 बजे वापस आ रहा था with his shirt stained. And why was his shirt stained? Because he, the narrator, ate mangoes. Okay, where he ate mangoes? He ate mangoes in the पोएट्स यार्ड. पोएट या फिर जो पर्सन है बी वर्ड्सवर्थ द मैन, उसके यार्ड में उसने मैंगोज खाए थे. दैट वर वेरी टेस्टी एंड ज्यूसी. ये चीज बोली गई है उसमें. द बॉयज मदर आस्क्ड हिम टू कट अ विप. बिकॉज अब देखो विप यहाँ पर ना एक पीस ऑफ लेदर को बोला गया है. शायद हमने स्टोरी जब लिखवाई थी तो हमने कुछ और स्टेटमेंट यूज की थी, उसको चेक कर लेना. एक पीस ऑफ लेदर को बोला गया है, शायद मारने या जिसके लिए भी उसको यूज करना हो. तो वाई शी वॉन्टेड टू डू दैट? क्योंकि शी वॉन्टेड टू यूज हर अथॉरिटी सो एज टू मेक द नरेटर बिहेव इन अ डिसिप्लिन वे. एंड ऑफ द डे वो उसको सिर्फ कूटना चाहती थी, मारना चाहती थी. द पोएट वेटेड फॉर द बॉय एट द मिगल स्ट्रीट. क्यों वो क्यों रुका था वहां पर? बिकॉज ही वॉन्टेड टू इन्वाइट द बॉय टू गो टू कम था वैसे, टू कम एंड ईट मैंगोज ऑफ हिज यार्ड. तो आप यहाँ पर गो भी लिख सकते हो, वो थोड़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला चला आता है इसमें. ओके, देन नेक्स्ट इज बी वर्ड्सवर्थ. आंसर टू द पुलिसमैन्स क्वेश्चन वाज फनी. जहां पर पुलिसमैन कहता है कि what are you doing, तो वो कहता है कि उसका आंसर जो है इट was in the form of a question which he has been. वो कह रहा है कि मैं भी खुद से यही सवाल पूछ रहा हूँ बहुत सालों से, शायद 40 years या कुछ. वो बोलता है कि मैं खुद से भी यही सवाल पूछ रहा हूँ. एंड दैट शोज द ह्यूमरस साइड ऑफ द पोएट or B Wordsworth. Okay, next we move towards singing lesson. Singing lesson में मिस मिडोज स्टेयर्ड इन हेट्रेड एट द साइंस मिस्ट्रेस. वो बहुत गुस्से में उसको देख रही थी. क्यों? बिकॉज हर डीप डिस्पेयर, बिकॉज ऑफ हर डीप डिस्पेयर मिस मिडोज डिड नॉट. अच्छा नहीं, ठीक है, हाँ सही है ये. बिकॉज ऑफ हर डीप डिस्पेयर, जस्ट बिकॉज के अंदर से वो बहुत ज्यादा टूटी हुई थी, शी वॉज अपसेट. Miss Meadows did not relish this courtesy call. जो out of love या hello हम लोग सुबह मॉर्निंग में करते हैं अपने फ्रेंड से, किसी से भी, ठीक है, तो वो उस कॉल को बहुत ज्यादा relish, बहुत ज्यादा चेरिश नहीं कर रही थी. Why? Because she was upset from inside. She was heartbroken. Basil, the fiance of Miss Meadows, could not refuse the invitation of the headmaster's wife because he could not afford to be unpopular. सिर्फ इतनी ही स्टेटमेंट है जो उसकी बुक में, टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो आई हैव रिटन इट एज इट इज. बेसिल टेक्स अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन. वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है टू मैरी, of denying to marry Miss Meadows. क्यों? Because he says that he is not the marrying man. आप exactly वो words भी quote कर सकते हो. He is not marrying kind of a person and feels that their marriage will be a mistake. Okay, बहुत सारी चीजें आप इसमें और mention कर सकते हो. That he found that the idea of marrying was a kind of disgust, or continuing a relationship was disgust. He might be filled with regret. Miss Meadows chose a lament, a sad song, as a lesson that particular day. क्यों? क्योंकि Basil, the fiance of Miss Meadows, had sent a letter breaking his marriage and she was heartbroken. यार यहाँ से भी start कर सकते हो, because she was heartbroken as Basil, the fiance of her, had sent a letter breaking their marriage. Miss White, the headmistress, summons or calls Miss Meadows to her room. क्यों? क्योंकि there was a telegram that had come for Miss Meadows. Okay, now we will move towards sound machine, the most terrible
story that I find as compared to Build a Fire, ये मुझे ज़्यादा difficult लगती है. The strange patient believe that the world is full of powerful sounds and are untamed. Why? Because he believed कि there is a whole world of sound जो लोग हैं वो नहीं उसको सुन सकते, और वो music is so powerful that people to drive crazy, to drive them mad, अगर उन्होंने उसको सुन लिया तो. Then next is, I have not taken a lot from these parts. अगर कुछ और भी है तो you can mention it in the comment box. I will solve it. Mrs. Saunders made a dash. वो बहुत जोर से भागी थी in the house in about 5 seconds. जब वो क्लॉजनर उनसे बात करने के लिए आता है. क्यों? Because she was afraid with the unusual है ये unusual behavior of Klausner. She wondered whether she should run into the house and fetch her husband. तो उनको डर लग रहा था कि वो इसका जो बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब तरीके से वो बिहेव कर रहा था, बहुत अजीब तरीके से वो बोल रहा था. I have also shown you how he was speaking. तो वो उससे वो बहुत ज्यादा अफ्रेड हो गई थी, डर गई थी. The doctor began to feel the tension in the room. Why? Because Klausner was engrossed in his work. जब डॉक्टर उससे पहली बार मिलने के लिए आता है तो क्लॉजनर बहुत ज्यादा जूझा होता है अपनी मशीन में. उसी के बारे में आप 2-3 चीजें और इसमें ऐड कर सकते हो कि वो उस टाइम क्या कर रहा था. ओके, ये वाला पार्ट पढ़ लेना, साउंड मशीन का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना. ये छोटी छोटी चीजें जो आ सकती है एग्जाम में. नेक्स्ट इज ग्लैडली द लास्ट स्टोरी. आई होप मैं कोई स्टोरी भूल नहीं गई हूं इसमें से. स्टोरी ऑफ एन आवर 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. So last story, the death of Mrs. Millard is ironic. Why? Because Mrs. Millard dies just when she was beginning to live, when she was planning to live, when she thought that there is a long procession of years to come and she will be free. Then she died, so her death is very much ironic. Next question, great care was taken to break the news और टू मिसेस मिलार्ड, जो उनके हस्बैंड की डेथ की न्यूज थी. क्यों? क्योंकि मिस मिलार्ड वाज अफ्लिक्टेड विद अ हार्ट ट्रबल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस मिलार्ड्स हार्ट ट्रबल. मिसेस मिलार्ड्स हार्ट ट्रबल इज आयरॉनिक. अब यहाँ पर उनकी डेथ की बात की गई, यहाँ पे उनके हार्ट ट्रबल की बात की गई. दो अलग अलग चीजें. क्यों? क्योंकि मिसेस मिलार्ड्स के हार्ट कैन नॉट होल्ड neither extreme joy na hi extreme pain. Okay, she can receive the news of her husband's death. वो उस समय दुखी नहीं हुई थी, या मतलब दुखी हुई थी वो. she didn't die at the time she heard the news of her husband's death. she died at the time when he was alive. तो ये एक आयरनी ही है जहां पर वो अपने हस्बैंड की डेथ के बारे में ना झेल पाई, लेकिन जब उसको पता चला उसका हस्बैंड जिंदा उसके सामने आ गया तो उससे आउट ऑफ द पेन शी डाइड. ठीक है, तो ये काइंड ऑफ हार्ट ट्रबल ही था. मिसेस मिलार्ड वाज हैप्पी. क्यों? वो खुश थी. मतलब नॉट एग्जैक्टली आई शुड से हैप्पी, बट शी टुक इट वेरी नाइसली. उसने बहुत ज्यादा रोना धोना वाला सिस्टम नहीं किया. Why? Because she tasted freedom and liberty for the first time since her marriage. Okay, she thought that her married life was enjoyable. ठीक थी, it was good. However, when she tasted freedom, she found it much better. That she don't have to rely on any of the things. और उसके बाद ये जो है इसको एक बार रीड कर लेना, इट माइट हेल्प यू. मतलब छोटा सा पैराग्राफ है ये, इसीलिए कि इनकेस ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू आयरनी तो यू कैन डील विद इट. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. वी विल डू द टेम्पेस्ट. आई हैव नॉट टेकन इन दिस क्योंकि टेम्पेस्ट के ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं. रेस्ट यू विल डू ऑन योर ओन. एग्जाम्स है, पढ़ना है तो complete it, prepare it. I will send this PDF to you on Telegram, and poetry also we will be doing soon. Till then, keep studying and just be your best. Thank you.